السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ صرف 5 افراد کے ساتھ بھی سپریم کورٹ نے محرم جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ درخواست گزار کا مطالبہ ہے کہ کورونا بحران میں حکومتی رہنمائانہ خطوط پر پوری توجہ دی جائے گی، جس میں صرف 5 افراد کو شامل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے درخواست گزار سے کہا کہ محرم کا جلوس پورے ملک میں نکلے گا، لہٰذا ہر ریاستی حکومت کی منظوری یا ان کے حق کو سننے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے کہا کہ اپنی درخواست میں انہیں 29 ریاستی حکومتوں کو بھی قانونی چارہ جوئی کرنا چاہیے، جس کے بعد سماعت ہوگی۔ درخواست گزار نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ محرم کا جلوس ہر سال ہوتا ہے، جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ کورونا ہر سال نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ میں اگلی سماعت پیر کو ہوگی۔ ہندوستانی فوج نے مشرقی لداخ میں اپنی جنگی تیاری کو مزید مستحکم کر دیا ہے اور اس خطے میں چینی ہیلی کاپٹروں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے پس منظر میں متعدد حساس علاقوں میں کندھوں پر رکھ کر فائر کیے جانے والے میزائل کے حامل میزائل بردار سپاہیوں کو متعین کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے آج یہ بات بتائی اور کہا کہ ان میزائلوں کا رینج 2 تا 5 کلومیٹر ہے اور یہ میزائل کم بلندی پر پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کو گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قابل لحاظ تعداد میں یہ سپاہیوں کی تعیناتی ہندوستان کے اس مجموعی طریقہ کار کا حصہ ہے جو مشرقی لداخ میں فوج اور ہندوستانی فضائیہ کی لڑاکا صلاحیتوں میں خصوصی طور پر اضافہ کرنے سے متعلق ہے۔ اتر پردیش کے بارہ بنکی میں تعزیہ رکھنے کو لے کر منگل کی دیر رات حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بارہ بنکی کے مسولی تھانے کے شہاب علاقے میں تعزیہ رکھنے سے متعلق کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ مسولہ تھانے کے ایس ایچ او نے موقع پر موجود رہ کر رات دیر گئے تک حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ عوام کے درمیان اعلان کر رہے تھے کہ اپنے اپنے گھروں میں خاموشی سے رہیں۔ اتر پردیش کے میرٹھ کے آنند اسپتال کا شمار شہر کے بڑے اسپتالوں میں ہوتا ہے، جہاں مریض کے علاج کی تمام ضروری سہولیات دستیاب ہیں۔ شہر کا یہ اسپتال ان چنندہ پرائیویٹ اسپتالوں میں شامل ہیں جہاں کورونا مثبت مریضوں کے علاج کی اجازت ہے۔ اس وقت بھی اسپتال میں 53 کورونا پازیٹیو مریض زیر علاج ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلوپیتھی، آیوروید اور یوگا سے لے کر ان مریضوں کے علاج کے لیے ہون پوجن تک کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز اسپتال کے کووڈ وارڈ میں باقاعدہ ہون میں آہوتی دے کر اسپتال کے کووڈ وارڈ اسٹاف کے علاوہ ڈاکٹروں نے بھی ہون پوجن کیا۔ اسپتال انتظامیہ کے ذمہ داران کے مطابق ہاسپٹل کے کووڈ وارڈ میں کورونا مثبت مریضوں کا علاج روایتی طریقے علاج کے علاوہ ان کی منفی سوچ کو ختم کرنے اور علاج کے لیے مثبت فکر کو قائم رکھنے کے مقصد سے ہون پوجن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہاسپٹل انتظامیہ ڈاکٹروں کے مطابق ابھی تک آنندہ ہاسپٹل میں کسی بھی کورونا مثبت مریض کی موت نہیں ہوئی ہے۔ یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے اور بیرونی طلباء کے لیے ہاسٹل کھولے جانے کے مطالبے کے ساتھ دھرنے پر بیٹھے طلباء پر پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا ہے۔ اتر پردیش کے الہ آباد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کے سامنے گزشتہ 1 ماہ سے جاری طلباء کے احتجاجی دھرنے کو پولیس نے طاقت کے ذریعے ختم کرا دیا۔ طلباء یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے دھرنے کی جگہ پر بھاری تعداد میں پولیس فورس تعینات کر دی ہے۔ پولیس نے پہلے طلباء سے دھرنا ختم کرنے کو کہا، لیکن طلباء نے پولیس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور نعرے بازی شروع کی۔ طلباء کی نعرے بازی شروع ہوتے ہی پولیس نے دھرنا دے رہے طلباء پر لاٹھی چارج کیا۔ دھرنے میں شامل سماجوادی پارٹی یوجن سبھا سے تعلق رکھنے والی کئی طلباء کو گرفتار کر کے پولیس لائن لے جایا گیا۔ گزشتہ 1 مہینے سے دھرنے پر بیٹھے طلباء کا الزام ہے کہ کورونا وائرس کے آڑ میں یونیورسٹی انتظامیہ نے تمام تعلیمی سرگرمیاں معطل کر رکھی ہے۔ نوٹ بندی کے بعد بھی جعلی نوٹوں پر نہیں کسا پایا شکنجہ۔ آر بی آئی کی رپورٹ میں انکشاف۔ آر بی آئی کے ذریعے پیش کردہ رپورٹ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ 2018-19 کے مقابلے 2019-20 میں 10 روپے، 50 روپے، 200 روپے اور 500 روپے کے پکڑے گئے جعلی نوٹوں کی تعداد بڑھی ہے۔ ہندوستان میں نوٹ بندی کے بعد ایسے دعوے کیے جا رہے تھے کہ جعلی نوٹوں پر شکنجہ کسا جا سکے گا، لیکن ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ نومبر 2016 میں جب نوٹ بندی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی جعلی نوٹوں کے پکڑے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بات کا انکشاف آر بی آئی کی ایک تازہ رپورٹ سے ہوتا ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہوئی خبروں کے مطابق 2019-20 میں تقریباً 3 لاکھ ہندوستانی کرنسی کے جعلی نوٹ پکڑے گئے ہیں۔ یہ اطلاع منگل کے روز ریزرو بینک آف انڈیا کی 2019-20 کی رپورٹ میں دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس توقع ہے کہ آئندہ 14 سپٹمبر تا 1 اکتوبر منعقد ہوگا۔ ایوان میں نشستوں کو فاصلے پر رکھنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور ارکان پارلیمنٹ کے لیے بڑے ڈسپلے اسکرینز لگائے جا رہے ہیں۔
समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए दोनों ऐवानों के औकात अलहदा हूँ होंगे। सरकारी ज़राए ने यह बात बताई और कहा कि मानसून इजलास की 18 नशिस्तें होंगी और ख़त्म हफ्ते पर कोई तातील या वक्फा नहीं दिया जाएगा। अपनी नवियत के इस पहले इजलास की दीगर तफसीलात का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। इस आने वाले इजलास के लिए हंगामी अंदाज में तैयारियां जारी हैं। दिल्ली ख्वातीन कमीशन ने त्रिलोकपुरी इलाके में शौहर के जरिए गुज़श्ता 6 माह से जंजीरों में बांध कर रखी गई एक 32 साला खातून को रिहा कराया है। दिल्ली ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल ने कहा कि हमें अपनी मुकामी सतह पर काम करने वाली महिला पंचायत के तौसीर से इस बारे में शिकायत मौसूल हुई। जैसे ही मुझे इत्तला मिली, मैं कमीशन के मेंबर फिरदौस खान और किरण नेगी के साथ दिए गए पते पर पहुंची और खातून की हालत देखकर हैरान रह गई। मुतासरा खातून की टांगों को जंजीरों से बांधा गया था। हमने इस खातून को रिहा करवाया और अब इसके इलाज और बाजियाबी के साथ साथ मुलजिम शौहर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान 2 माह मुअत्तल रहने के बाद दोबारा शुरू होने पर बाज़ाब्ता मुसाफिर परवाज़ों की तादाद तो पहली बार 1000 से ज़्यादा हो गई है। शहरी हवाबाजी के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा, 25 मई को ऑपरेशन दोबारा शुरू होने के बाद पहली दफ़ा बाज़ाब्ता देसी परवाज़ों की तादाद 1000 से तजावीज़ कर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह जैन मजहब के मानने वालों को इनके 10 रोज़ा त्यौहार के पेश नज़र जैन मंदिरों में अकीदतमंदों को दाखिले की इजाज़त दी है, इसी की रोशनी में मुसलमानों के लिए भी 8 ta 10 मुहर्रम को मसाजिद खुले रखने की इजाज़त देने का मुतालबा महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर और रियासती कांग्रेस के नायब सदर मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने आज किया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से किए गए अपने मुतालबे में उन्होंने वाज़ेह किया कि ये महीना मुसलमानों के लिए कई लिहाज से अहमियत का हामिल है और शरीयत मुतहरा ने इस माह को हुर्मत व एहतराम वाला महीना कहा है। तुर्की और यूनान ने बहरे रूम के मशरिक में अलग अलग जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। हालिया कुछ अरसे से इन हमसाया ममालिक के दरमियान गैस के ज़खायर के मामले पर कशीदगी बढ़ गई है। यूनान ने क्रेट जजीरे के जुनूब में एक फ़ौजी मशक का आगाज़ किया है। जवाब में तुर्क वज़ारत दिफा ने भी इस इलाके में अपनी अलग मशक़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया। कशीदगी में कमी के लिए जर्मन वज़ीर ख़ारजा फौरी तौर पर तुर्की और यूनान के लिए रवाना हो गए हैं। इसी दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की बहरिया रूम में यूनान की इश्तियाल अंगेज़ी पर खामोश नहीं बैठेगा। सऊदी अरब के मौजूदा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सऊदी ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के मिशन पर तेज़ी से अमल जारी है। सऊदी अरब में पहली बार साइकिल रेस का इनेकाद हुआ। सूबा असीर के मारूफ शहर अबहा में सऊदी साइकिलिंग फेडरेशन के ज़ेर निगरानी हुए 13 किलोमीटर मसाफत के इस मुकाबले में पूरी मुमलिकत से 10 ख्वातीन साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। ये मुकाबला सऊदी नौजवान खातून अहलाम नासिर अल ज़ैद ने जीत लिया। वाज़ेह है कि अपनी नवियत का साइकिलिंग का यह पहला मुकाबला था जिसमें सऊदी ख्वातीन ने सरकारी तौर पर शिरकत की। अहलाम ने मुकर्ररा फासला 22 मिनट और 18 सेकंड में तय किया। अहलाम ने अपनी ट्वीट में कहा कि ख्वाब पूरा हो गया। मुमलिकत की साइकिल चैंपियन का टाइटल जीतना मेरा देरीना ख्वाब था। मैं साइकिलिंग के खेल से वाबस्ता होने के वक्त से ही ये ख्वाब देख रही थी। तेलंगाना के खदीम सेक्रेटरीट के अहाते में 2 मसाजिद और एक मंदिर के इन्हदाम के खिलाफ कांग्रेस से आज सैफाबाद पुलिस स्टेशन में 150 से ज़ायद शिकायत दर्ज की गई। सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव और सदर नशीन माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट प्रदेश कांग्रेस शेख अब्दुल्ला सोहेल की क़यादत में सैकड़ों कांग्रेस कारकुनों ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर इबादत गाहों के इन्हदाम के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। अब्दुल्ला सोहेल ने बताया कि हमने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सदर नशीन वक्फ मोहम्मद सलीम और इन्हदाम के दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का मुतालबा करके ताज़ा शिकायत दायर की है। तेलंगाना हुकूमत अब एक मसनूई तफरीही मुकाम KCR आइलैंड की तामीर के लिए कोशिशें शुरू कर चुकी है। ये आइलैंड करीमनगर में लोअर मैनियर डैम के वसत में बनाया जाएगा। इसके लिए कुदरती चट्टानों पर मुश्तमिल पहाड़ तैयार किए जाएंगे। वहां तक रसाई के लिए निस्फ किलोमीटर का केबल सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। बुलंद खामत दरख्त लगाए जाएंगे और लैंडस्केप गार्ड भी तैयार किया जाएगा। यहाँ तमाम दूसरी सहूलियात जैसे ख़याम, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी फराहम की जाएंगी। ये डैम, आइलैंड, सस्पेंशन ब्रिज और दूसरी पुरकशिश सहूलियात करीमनगर से बहुत करीबी फासले पर दस्तियाब रहेंगी। कहा गया है कि गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान ये तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं और जब ये आइलैंड तैयार हो जाएगा शहर करीमनगर की हालत बदल जाएगी। करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने KCR आइलैंड का बेड़ा उठाया है और कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ कुदरती वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कहा गया है कि इस सिलसिले में एक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई है और जैसे ही इसकी मंजूरी मिलेगी इसके लिए टेंडर्स तलब कर लिए जाएंगे। डायरेक्टरेट जनरल शहरी हवाबाजी ने मुल्क भर में जुमला 11 हवाबाजी एकेडमीज़ को ड्रोन्स के इस्तेमाल के जरिए रिमोट पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त दी है, जिनमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 4 एकेडमी शामिल हैं।
DGCA की जानिब से मुल्क में ड्रोन की तैनाती और इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए ऐसा किया जा रहा है और इसके ज़रिए दरकार सलाहियतों को तैयार किया जा सकता है। डायरेक्टरेट की जानिब से मुल्क भर में 11 एकेडमीज़ को अब तक ड्रोन ट्रेनिंग की इजाज़त दी है, जिनमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 4 एकेडमियाँ शामिल हैं। इनमें तेलंगाना स्टेट एविएशन एकेडमी, विंग एविएशन एकेडमी, फ्लाइट टेक एविएशन एकेडमी और एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी शामिल हैं। बालापुर इलाके में कदीम कुतुब शाही मस्जिद को कॉन्ट्रैक्टर ने मुनहदिम कर दिया। बालापुर मंडल जलीलगुड़े में कदीम मस्जिद और इसके तहत खबरस्तान मौजूद है। यह मस्जिद गैराबाद थी, जिसका फ़ायदा उठाकर मुकामी कॉन्ट्रैक्टर ने रातों रात इसको शहीद कर दिया। इसके अलावा खबरों को मुस्मार कर दिया गया ताकि खान की तामीरी सरगर्मियाँ अंजाम दी जा सके। मुकामी अफराद कॉन्ट्रैक्टर की इस कार्रवाई पर हैरत ज़दा रह गए क्योंकि मस्जिद के मीनारों की मौजूदगी के बावजूद इसे ज़मीन बोस कर दिया गया। वक्फ बोर्ड के मुताबिक मस्जिद कुतुब शाही के तहत 1 एकड़ 28 गुंटे अराजी है। कब्रस्तान के निशानात मिटाने खबरों पर मिट्टी डाल दी गई। साबिक में वक्फ अराजी पर मेट्रो वाटर वर्क्स की जानिब से वाटर टैंक की तामीर की कोशिश की गई, जिस पर हाईकोर्ट से रुजू होकर इनको नाकाम बनाया गया था। हाईकोर्ट ने इसे वक्फ अराजी तस्लीम कर लिया है। मुकामी एमआरओ ने अपनी रिपोर्ट में 1 एकड़ 28 गुंटे अराजी का एतराफ़ किया। वक्फ बोर्ड को फौरी कार्रवाई करके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस कायद उस्मान मोहम्मद खान और मतीन शरीफ ने मस्जिद का मुआयना करके इन्हदाम की मजम्मत की। उन्होंने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की तवज्जो मबज़ूल करवाई। शहर में जराइम के फ़ीसद को कम करने और जराइम से पाक शहर की तामीर को यकीनी बनाने सिटी पुलिस ने एक और इक़दाम का आगाज़ किया है। सिटी पुलिस ने अब ऐसे ड्राइवर्स की निशानदही का बेड़ा उठाया है जो बार बार जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। पुलिस ने इसमें ड्राइवर्स यूनियनों को शामिल करने का फैसला किया है। एक इजलास के बाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने यह बात बताई। इजलास में यह फैसला किया गया। ओहदेदारों का मानना है कि अक्सर जराइम जो बार बार पेश आ रहे हैं, इनमें ऑटोज़ और कैब ड्राइवर्स मुलविस पाए गए। सिटी पुलिस का ये इक़दाम एक तरफ ड्राइवर्स के पेशे को ऐसे अफराद की सरगर्मियों से बदनाम होने बचाना भी है, तो दूसरी तरफ इस पेशे से वाबस्ता अफराद की स्क्रीनिंग भी करना है और इस इक़दाम के लिए लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस में तालमेल को लाजमी करार दिया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसों में फिर इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के अब तक का सबसे बड़ा इजाफा देखा गया है। जी हाँ, रियासत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3018 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 10 अमवात दर्ज की गई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में जुमला कोरोना केसेस की तादाद 1,11,688 हो गई है और मरने वालों की तादाद 85,223 हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद में केसों की तादाद में अगरचे गुज़िश्ता हफ्ते से कमी वाक़ हो रही थी, लेकिन आज फिर हैदराबाद में 475 केसेस दर्ज किए गए।